ایسا کوئی ہو تو میں کہتا ہوں کہ جی آج بہت سارے ذہن جو ہیں اتھل پتھل ہونے والے ہیں، یعنی اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ ہوں گے، بہت سارے سوال جنم لیں گے جن کے آپ جواب ڈھونڈنے کے لیے بہت سارے خادموں کو سوال کریں گے. مجھے تو شاید انتقام ہی کریں، لیکن بہت سارے دوسرے خادموں کو آپ سوال کرنے کی کوشش کریں کہ جی ایک پادری آیا سی، انہیں ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ، ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ نہیں ਆئی، ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵੇ تو ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ. ایسا بھی ہم کرتے ہیں. چلو دیٹ از اندر وے آف لرننگ کہ کسی طرح سے کوئی کوشش تو کر رہا ہے. اسی کوشش کرتے کرتے ہم خداوند کو جان جاتے ہیں. لیکن یہ کوشش اگر کوئی ایماندار خداوند میں پختگی سے کرتا ہے اس کے لیے باعث برکت ہے. لیکن اگر کوئی نو مرید ہے، نیا نیا کرسچن ہوا ہے اور وہ ان باتوں کے کھوج میں لگ جائے تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کہ وہ اچھا مسیحی ہو وہ ایک اسکالر بننا چاہتا ہے. سب سے پہلے اچھے مسیحی بننا سیکھیں تاکہ کلام کی سختی اور نرمی دونوں کو پہچاننا سیکھیں. پھر جو ہے اپنی جو چیزیں ہیں، اپنی جو خواہشات ہیں کہ ہم بہت بڑے اسکالر بن جائیں، اس کو سیٹسفائی کریں اور کلام کی بات کریں. آئیے کلام مقدس کے ایک حوالے کو دیکھتے ہیں، جینیسس چیپٹر نمبر 1، اور اسی طرح سے ہم دوسرے چیپٹر میں پڑھتا جاؤں گا، بتاتا جاؤں گا آپ کو کہ کون سی ریفرنسز ہیں جن کو ہم پڑھتے ہوئے آگے چلیں گے. اور آج پھر ایک کوشش کرتے ہیں، شاید کوئی بات پھر سے نئی جو ہے وہ سیکھنے کی طرف جو ہے ہمیں سوال مل جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جواب ملیں گے، سوال ہی سوال ملیں گے، اتھل پتھل ہوئیں گے آپ، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو سمیٹنے کے لیے لوگوں کی مدد لیں گے کہ آپ سمیٹا کیسے جائیں. جینیسس چیپٹر نمبر 1 اس کی 26ویں آیت سے کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. آؤ ہم بنائیں تاکہ وہ اختیار رکھے. دس از دا پلان آف دا لارڈ، ہی ہیز ناٹ ڈن یٹ. اور خداوند جب موسیٰ کو لکھوا رہے تھے، تحریر کو دیکھیے، جب چیزیں لکھی جاتی ہیں خداوند نے ایسے تھوڑا بتایا تھا. تب خداوند نے سوچا، پھر اس نے ایسے کیا، نو موسیٰ سن، تب میں نے سوچا کہ آؤ انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں. اور موسیٰ لکھتے ہیں تب خداوند نے کہا، کس سے؟ اپنے آپ سے. گاڈ دا ایلوہیم، خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس، اس نے اپنے آپ سے اس بات کا ارادہ کیا، اس نے سوچا کہ میں ایسا کروں گا. اور موسیٰ نے لکھا کہ خداوند نے ایسا ارادہ کر لیا کہ وہ انسان کو بنائے گا اور پھر وہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی اور زمین کے پرندوں کو بھی اور چرندوں کو بھی بنائے گا، اور انسان پھر اس پر اختیار رکھے گا. دس از دا آؤٹ لائن، دس از دا پلان آف دا لارڈ. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. اینڈ گاڈ سیڈ ٹو موسیس اینڈ آئی ڈیڈ سو، میں نے ایسا کیا بھی. اور موسیٰ نے کیا لکھا؟ اور خدا نے انسان کو جو ہے وہ اپنی شبیہ پر اور صورت پر پیدا کر دیا. خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا. اور خدا نے کیا کہا موسیٰ سے؟ اور میں نے اس کو اپنی صورت پر پیدا کیا بھی. اب بتانے والا کچھ اپنی طرح سے بتا رہا ہے، کیونکہ لکھنے والا وہ خود نہیں ہے، تھرڈ پارٹی ہے، تو وہ اس کا نام مینشن کر کے لکھ رہا ہے جس نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ اس نے یہ کیا. اور خدا نے ان کو نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں پر اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو، حکم چلاؤ، اتھارٹی رکھو. یو آر آتھورائزڈ ٹو موو دیم، ٹو نیم دیم، ٹو پٹ دیم ٹو ورک. ان کو کام میں لگاؤ، تمہارے اختیار میں ہے وہ. اگلی بات جو ہے، اور خدا نے کہا دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار
सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको खाने को देता हूं। पास्टर अजय एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एंड ही नोज इट। आज हमने जो है अपना तरीका बदल लिया है। वी हैव चेंज्ड द इकोसिस्टम। हम बीजदार सब्जियों को जो है हमने सीडलेस भांजपन से उनको बदल दिया है। मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट द वेजिटेबल्स विद सीड्स कि आप उनका बीज लें और अगले सीजन में बोकर उसे फसल ले सकें। दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, उनके जीन्स में तब्दीलियां करके उनकी प्रोडक्शन, पैदावार, उनका गोश्त, उनका मोटापा तो बढ़ गया है, लेकिन वो अपनी नस्ल आगे बढ़ाने से कासिर हैं। पिछले दिनों में एक बेटी ने यही सरमन सुना। ये सरमन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। आज हम जो है वो इब्तदाई बातें सीखेंगे और अगले सरमन में हम सीखेंगे कि इसका ताल्लुक जो है वो नए अहदनामे से कैसे जुड़ता है। बेटी ने सवाल किया कि आज तो इंसान ने बहुत सारे तरीके जो हैं वो इजाद कर लिए हैं, पेनलेस डिलीवरीज हो रही हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, तो खुदा की वो बात जो है वो कहां जाती है? खुदा ने जो फरमाया वो अपनी जगह पर कायम है। इंसान ने जो कुछ किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके साथ रहेंगे और उसको वो भुगतेगा और उसको देखेगा। खुदावंद ने इरादा किया है, उसका सुखन, उसका ख्याल, उसका मंसूबा, उसका तसव्वुर जो उसने इरादा किया है वो बदलेगा नहीं। इंसान अपनी जो है वो कोशिशों से जो कुछ भी कर सकता है उसने बतेरा कुछ किया है। गुनाह से लेकर, इत्मीनान से लेकर, कुर्बानियों से लेकर न जाने कितनी चीजें बदल डाली हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस मौत की सूरत में, कर्श की सूरत में उसने झेले हैं। आगे बढ़ते हैं। कलाम में लिखा है, तो कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त में उसका बीजदार फल हो तुम्हें खाने को देता हूं, और ये तुम्हारे खाने को हो और जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जब जमीन पर रेंगने वाले हैं जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हुआ। यहां पर स्टॉप जो है वो लगाकर मैं एक बात एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बहुत सारे बहन भाई, ये इररेलेवेंट भी आपको लग सकती है बात, पर ये बहुत सारी बातों में हमारी सोसाइटी में रेलेवेंट भी है। बहुत सारे जो टोबैको स्मोकर्स हैं या च्यूइंग टोबैको का जो है वो नशा करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें दिखाया जाए कि बाइबल मुकद्दस में कहाँ लिखा है कि तंबाकू पीना या इसको जो है वो च्यू करना, इसको मुंह में रख के जो है ये करना गलत है। जितने पंजाब से हैं या जितने जो है वो एग्रीकल्चर से जिनका ताल्लुक है, मुझे आप बता सकते हैं कि टोबैको जो है ये वेजिटेबल है या हर्ब है, जड़ी बूटी है। कभी हम में से कभी किसी ने टोबैको का प्लांट कितना खूबसूरत और कितना हरा कचूर होता है, हमारे सैलेड से भी ज्यादा अच्छा, दिखने में बड़ा खुशनुमा होता है, कभी किसी ने उसकी वेजिटेबल बनाई? कभी किसी ने सैलेड में इस्तेमाल किया? जितने जानवर पालने वाले हैं, कभी आपने अपने जानवर को काट के उसके चारे में डाल के दिया कि तेरे अंदर की कड़वाहट और मेदा ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए? बल्कि हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि जिस गन्ने की फसल को या जिस कीमती फसल को बचाना मकसूद होता था, उसके इर्द गिर्द हम टोबैको प्लांट्स लगाते थे, क्योंकि सुअर जो है वो गन्ने की फसल को खराब करने के लिए बड़ी जल्दी जो है वो आता है। तो कहते थे कि जिस फसल को बचाना चाहिए उसके इर्द गिर्द जो है वो आप टोबैको प्लांट्स जो है वो लगाएं, तो सुअर कहाँ यहाँ इसकी स्मेल से कभी अंदर नहीं आएगा। इंसान का हाल ये है, हमने ना जानवरों की खुराक छोड़ी, ना हमने जमीन हवा में परिंदों की खुराक छोड़ी, ना हमने रेंगने वालों की खुराकें छोड़ी, ना हमने छछूंदर और चूहों की खुराकें छोड़ी, हमने सब कुछ खाया है और उन सब को भी खाया है जिनकी हम खुराक खाते हैं। हॉरिबल है हम कुछ भी जो है वो नहीं छोड़ना चाहते कि हम जो है वो कुछ बाकी ना रह जाए, हम सब कुछ तजुर्बा करना चाहते हैं।
تب ٹوبیکو جو ہے وہ بوٹی ہے جسے صرف جانور کھاتے ہیں. اور سچ بھی ہے، جب خدا انسان نے گناہ کیا تو انسان سے جانور ہی بن گیا. گھاس کھانے والے جو ہیں جانور، وائلڈ اینیملز جو تھے وہ بیسٹ کہلوانے لگے. سمندر کی مچھلیاں جو پودے کھاتی تھی، کچھ اور مٹی چاٹتی تھی، انہوں نے چھوٹی مچھلیوں کو کھانا شروع کر دیا. دیز آر دا افیکٹس آف دا سن. اور اس کا ہم پر تو کچھ زیادہ ہی اثر ہوا نا. ہم نے ان سب کی خوراکیں بھی کھائی اور ان سب کو بھی کھایا اور مارا بھی، ان کا شکار بھی کیا، ایسے جیسے زمین ان کے لیے کبھی بنی ہی نہیں تھی کہ یہ کبھی زندہ رہتے ہوں. ہم آگے جب چلتے ہیں، جب کبھی کوئی بھائی یا بہن اگر آرگیو کرے کہ جی یہ تو ٹوبیکو ہے، اسے کہیے جی ویجیٹیبل ہے، پھر اسے پڑھ کے سنائیے کہ جانوروں کے لیے ہوتا ہے اور آپ تو بڑے اشرف المخلوقات ہیں. یو آر ابو ایوری کریچر. آپ کا درجہ تو جو ہے وہ خدا کی ہیکل ہے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ دھواں پھونکنے کی چمنی بنا رکھا ہے. یہ کون سی سوختنی قربانی کا دھواں آسمان کی طرف جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، جو جا کے خدا کے نتنوں سے ٹکراتے ہی پلیزنگ اروما بن جائے گا اور وہ خوشبو لے کر کہے گا ہاللیلویا، میرا بیٹا آیا ہے، میری بیٹی آئی ہے. نیچے اس نے چمنی جو ہے وہ کھول رکھی ہے، اینٹوں کا بھٹا لگا رکھا ہے. جتنے ہماری فیملیز میں ایسا کرتے ہیں، بڑی محبت سے ان کو بتائیے کلام مقدس میں پہلے دن سے، پہلے دنوں سے، پہلے ہفتے سے، پہلی کریشن کے ٹائم سے خدا نے منع کر دیا تھا یہ جڑی بوٹیاں مت کھانا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، تمہیں جانور بنا دیں گی، جانوروں کی خوراک نہ کھایا کرو. اگلی بات، یہ جو ساری کریشن ہوئی ہے، سب کچھ جو انتظام ہوا ہے، تانا بانا بنا ہے، اس کے بننے کے بعد کچھ چیزیں ایسی تھی جو ابھی فنکشنل نہیں تھی، ابھی کام میں نہیں لگی تھی. آئیے چوتھی آیت دوسرے باب کی پڑھتے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر دیکھیے، پڑھیے. لکھا ہے یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا. خدا نے ارادہ کیا انسان کے ساتھ ساتھ کہ وہ اور کیا کچھ کرے گا، لیکن ابھی جو ہے کچھ چیزیں کام میں، ابھی حرکت میں، وجود میں نہیں آئی ہیں. اور خدا ابھی جو ان کو وجود دے رہا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو کام میں لگائے گا اور پھر ان کا ٹیسٹ کرے گا. اگر وہ اچھے سے کام کریں گے تو وہ جاری رہیں گے، نہیں تو وہ ان کو ماڈیفائی کرے گا. وہاں پر لکھا ہے 5ویں آیت میں، اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا، بلکہ زمین سے کہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی. اس سے اندر رطوبت، نمی اس کے اندر سے نکلتی تھی اور اس کو سیراب کرتی تھی. اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. خدا نے سوچا پہلے تھا میں ایسا کروں گا، اور اس نے اس سارے کام کو جب اس نے کل آسمان اور زمین کا لشکر بنا لیا تو اس کے بعد اس نے جو ہے وہ انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اس کو جیتی جان کیا. آگے جو ہے وہ عدن کے باغ کا ذکر ہے. اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا، اس نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی اگایا گیا اور لگایا گیا. اور عدن سے ایک دریا باغ پہ سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا. اب آگے چلیے میرے ساتھ 15ویں آیت میں. اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا اور اس کو باغبانی اور نگہبانی، تاکہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے. میں اس لیے یہ دہرا کر، یہ چبا کر یہ باتیں کر رہا ہوں. ان درختوں کے بیچ میں، ان کے ساتھ ساتھ
हयात का दरख्त भी शामिल था। जो दरख्त उगाए गए थे और जो लगाए गए थे, उनमें से खुदा ने कहा था कि तू हर दरख्त का फल खा सकता है, उसमें हयात का दरख्त भी शामिल है। लेकिन उसने साथ एक बात का हुक्म दिया। खुदावन ने हुक्मन ये बात कही थी, ताकीद के साथ ये बात कही थी, बड़ी एम्फेसिस के साथ ये बात कही थी, मगर नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। खुदावन ने अपनी मानद बनाया, और जब हम ये कहते हैं कि खुदा ने आदम को अपनी मानद बनाया, तो इसका मतलब है कि आदम इमॉर्टल था, लाफानी था, उसको मौत नहीं आने वाली थी, वो खुदा की मानद था। उसको जो इख्तियार दिया गया था वो खुदा की मानद था कि जो कुछ तू कहेगा वो हो जाएगा, तू जो कुछ जमीन को हुक्म करेगा ये करेगी, जो कुछ परिंदों को और चरिंदों को तू हुक्म करेगा वो सब करेंगे, और जो कुछ तू इरादा करेगा वो सब कुछ तेरे लिए हो जाएगा। और जब वो बागबानी करता था तो वो कोई कस्सी लेकर जो है खुदाइयां नहीं कर रहा था, और अगर हो भी सकता है कि वो करता हो तो आगे आने वाले सफे में हम देखेंगे कि ये चीजें बदल कैसे गई हैं। कहना ये चाहिए कि जैसा खुदा जलाली था, एवरलास्टिंग था, आदम भी जलाली था, एवरलास्टिंग था, और उसको मौत नहीं आ सकती थी। खुदावन ने कहा क्यों? क्योंकि वो हयात के दरख्त में से खाता था। अपनी खुराक खाते खाते वो हयात के दरख्त में से भी खाता था, इसीलिए वो अब्दुल्ला बाद तक जिंदा होने के लिए, रहने के लिए जो है वो मुकर्रर था। अगली बातें जो हैं, और खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। ही थॉट, उसने मूसा को जो बताया, उसने कहा कि मैंने आदम के लिए ये सोचा, मैंने उसे देखा तो मैंने ख्याल किया कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? उसका रीजन खुदा ने एक्सप्लेन किया है, उसका रीजन दिया है आगे। इसलिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा, और खुदा ने कुल दश्ती जानवरों और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए, और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। पहली बात जो हमने सीखी वो ये कि वो आदम लाफानी था, वो खुदा की मानंद था, खुदा की सिफ्तों से भरपूर था, और जो कुछ कहता था वो हो जाता था, वो वजूद भी नहीं आता था। अब ये चीजें जो हैं, अब जब हम कहते हैं कि खुदा ने मट्टी से चीजें जो बनाई वो उसके पास लेकर आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनमें जिंदगी का दम आदम ने फूंका था, ये बात कहते हुए मुझे एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। इसका मुकाशफा भी मेरे पास नहीं है कि वो जीती जान जो है वो आदम के सबब से हुए या खुदा के सबब से हुए, पर जो कलाम में लिखा है कि वो मट्टी से बनाकर उसके पास लेकर आया ताकि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम हुआ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। देयर इज अ रेवलेशन इन इट कि आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम हुआ। दिस इज क्रिएटिव एबिलिटी, ये वो तख्लीकी कुदरत है जो सिर्फ खुदा में रहती है। ये खुदा की सिफ्त है जिसको आदम जो है उस वक्त रखता था जब तक वो लाफानी था और खुदा की मानंद था और जलाली था। और आदम ने कुल चुपाए और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानंद ना मिला। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये को पलक झपकते ना तो नाम रखे गए थे, ना ही वो बनाए गए थे, और ना ही जो है वो मल्टीप्लिकेशन के अमल से गुजर रहे थे। इट टुक अ टाइम, इसके लिए वक्त लगा। और जब आदम ये देखता था कि हर एक जानवर का जोड़ा है, अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल है,
एक जो है नर है तो एक मादा कहलाती है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, इनकी नस्ल बढ़ रही है। और जब सब कुछ उसने ये देखा तो वो उदास हुआ, वो उदास हुआ। खुदावन ने उसकी उदासी को देखा और उसने कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसकी मानंद, इसकी तरह का एक मददगार बनाऊंगा। अब वक्त आया है कि उसका मददगार बनाया जाए। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। सो वो सो गया और उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली में से जो उसने आदम में से निकाली थी, एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने क्या कहा? उसने कहा ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे गोश्त में से गोश्त है। क्यों? क्योंकि उसमें खुदा की सिफतें मौजूद थी। एक सोया हुआ आदमी नींद से जागकर कैसे जान सकता है कि ये मुझ में से है, जबकि वो खुद जानता है कि मैं तो मिट्टी से हूं। आई एम फ्रॉम द डाइंग डस्ट। फिर ये कौन है? चूंकि वो खुदा की माने जो है इस बात की एबिलिटी रखता था और उसने उसको देखते ही पहचान लिया कि ये कोई और नहीं है, ये मेरे ही जैसी, मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। अगली बात उसने जो कही बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वो नारी कहलाएगी। फटाफट उसने अपना जुमला कहा, कहीं ये ना हो कि खुदा अपना इरादा बदल ले, क्योंकि वो जानता था आई एम द मेल बट आई डोंट हैव अ फीमेल। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, ना ही हो सकता हूं। उसने फटाफट कहा, उसने कहा ये फीमेल है, ये नारी है, ये बच्चे जन्म देगी। और तब तक मुझे नहीं पता खुदा का, चूंकि उसने ये इरादा किया था कि वो जमीन को मामूर भी करेंगे, महकूम भी करेंगे। ये ब्लेसिंग्स जो हैं खुदावन के इरादे में शामिल थी। आदम का ये कहना था कि ये नारी कहलाएगी और उसके लिए ऐसा ही हुआ कि वो नस्ल को जन्म दे। क्योंकि वो नर से निकाली गई, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। वो एक तन होंगे और आदम और उसकी बीवी दोनों जो हैं वो शर्माते नहीं थे। ये बातें जो हैं अब यहां तक जिस तरह से जो है मैं इनको देखता हूं, अब तक आदम जो है वो लाफानी था, वो जलाली भी था और जिस्म भी रखता था। क्योंकि जलाली जिस्म के लिए वो खा भी सकता है, वो मूव भी कर सकता है, जहां चाहे जा सकता है, पहुंच सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। और जिसको चाहे नजर भी आ सकता है। इसीलिए आदम के लिए लिखा है कि वो खुदा के बेटे का हम शक्ल और उसके जैसा था। लेकिन जो कुछ यहां पर हुआ है उसके बाद कलाम में लिखा है कि जिस रोज तूने खाया उस रोज तू मरेगा। और मौत जो है, क्योंकि आदम दो किस्म की जिंदगी को एंजॉय कर रहा था, जलाली को भी और बदन की जिंदगी को भी। जिस रोज उसने गुनाह किया उसमें से जलाल वाला हिस्सा जो है वो जाता रहा। और जब जलाल का पर्दा हटा तो उसको जो अदन खूबसूरत नजर आता था वो सारे का सारा बदसूरत हो गया। जो सब भला भला था, चंगा चंगा था, हरा हरा था, वो सब का सब जलाल का पर्दा हटते ही उसे ऐसे लगा जैसे वो आसमान से जमीन पर गिरा है। वो चीजें जो उसके लिए खुशी का सबब था, उसके हुक्म मानने का सबब था, वो सारी की सारी चीजें उसके गुनाह के सबब से उनकी फितरत, उनका मिजाज लाफानी से फानी में हो गया, इमॉर्टल से मोर्टेलिटी की तरफ चला गया। फना का जामा पहन लिया उसने। और ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं फना का जामा, इससे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। फना का जामा आदम ने पहना, पूरी कायनात ने पहना, परिंदों ने भी पहना, चरिंदों ने भी पहना, जमीन पर रेंगने वाली चीजों ने भी पहना। गुनाह के सबब से फना और मौत जो है वो एक्टिवेट हुई है। होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट।
मौत को किसने पैदा किया है? मौत किसकी काविश है, किसकी वजह से है, इसका ब्लेम किसको जाता है? अक्सर लोग सवाल करते हैं मौत इतनी ही गंदी और बुरी चीज है तो खुदा ने इसकी तख्लीक ही क्यों की है? खुदाबंद ने कहा कि जिस रोज तूने खाया उस रोज तू मरा। खुदाबंद के मुंह का कलाम और आदम का अमल, उसका काम, दोनों मिलकर उन्होंने मौत को एक्टिवेट किया है। मौत जो है इंसान के कामों से और खुदा के कलाम की नाफरमानी के सबब से, उसकी नाफरमानी के नतीजे में ठहराई जाने वाली सजा के तौर पर जो है वो आदम के लिए एक्टिवेट हुई है। खुदावन ने उसे 2 चॉइसेस दी थी, इमॉर्टैलिटी इफ यू स्टे इनोसेंट, अगर तू बेगुनाह रहे, मेरी ताबेदारी में चले, मासूम बना रहे, तो खुदा की मानंद अब्दुल्लाबाद तक हयात के दरख्त में से खाकर तू अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेगा। इफ यू नीड नॉलेज यू विल हैव डेथ। दुनिया को नॉलेज बहुत चाहिए, किसी भी वजह से चाहिए, किसी भी जगह से चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए। पीपल आर लुकिंग फॉर द नॉलेज। पहचान चाहिए लोगों को, पॉपुलैरिटी चाहिए, मैं बड़े बड़े लोगों की मानद बन जाऊं, लोगों को ये चाहिए। बट दे आर इनवाइटिंग डेथ टू देयर लाइफ। आदम भी जो है उस सिलेक्शन में, उस चॉइस में डगमगाए और उन्होंने नेक और बद की पहचान को जो है वो सिलेक्ट किया और साथ ही अपने लिए मौत एक्टिवेट कर बैठे, जो उनके बाद और उनसे पहले हर बशर के लिए थी, हर जानवर के लिए थी। क्योंकि जो मिट्टी से निकला है, बना है, जिसकी असल मिट्टी है, गुनाह के सबब से हर चीज जो है वो अफेक्ट हुई है, मुतासिर हुई है, उसका वजूद, उसकी फितरत बदल गई है। घास खाने वाले जो है वो गोश्तखोर हो गए हैं, मासूम जो हैं वो गुनाहगार और खौफनाक हो गए हैं। इमोर्टैलिटी, लाफानियत, जलाल, अगर तू मासूम रहे और गुनाह से मुबर्रा रहे तो। लेकिन अगर तू नेक और बद की पहचान की तरफ बढ़ जाए तो फिर मौत एक्टिवेट होगी। क्या आदम को पहले नहीं पता था कि मैं खुदा की मानद हूं, मैं खुदा की तरह का हूं? पता था उसको, फिर भी जो है इस बात का उन्होंने दोनों ने यकीन कर लिया कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे। हम जानते हैं हम मसीह के पैरोकार हैं, मसीह के हम शक्ल हैं, खुदा के बेटे कहलाने के लिए बुलाए गए हैं, आसमानी बाप जो है वो हमारा पिता है। फिर भी अगर कोई हमें वर्गलाए और फिर भी हमें तरह तरह की तालीमें देकर कहे कि तुम खुदा के सज्जे पट्टों हो जाओगे, हम तो पहले ही से उसके फर्जंद हैं, हम पहले से उसके फर्जंद हैं। खबरदार रहिए कोई हमें वर्गलाने ना पाए। कलाम में लिखा है कि अपनी और अपनी तालीम की खबरगिरी कर कि तूने सुना क्या है, तूने पढ़ा क्या है, तेरा बाप कौन है, शक में मत पड़। खुदाबंद का कलाम हमारे लिए हर रोज ताजा है, जिंदा है। कुछ ये चंद अबवाब हैं, थोड़ी सी तहरीर है, पर इसमें बरसा बरस छुपे हैं, अनकही बातें भी मौजूद हैं। और कुछ बातें जो हैं वो हमारे पास इस तरह से भी पहुंचती हैं, जब खुदा उनसे बात करता है, उनको सजा देता है, तो फिर हमें अंदाजा होता है तो पहले कुछ मुख्तलिफ था, पहले कुछ डिफरेंट होता था, आज आदम और हवा के साथ कुछ मुख्तलिफ हो रहा है। सजा के बाद कुछ चीजें बदल गई हैं। आइए देखते हैं कलाम मुकद्दस में, वहां पर लिखा है 2 बाब की 14वीं आयत में, और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए तूने ये किया तो सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मालाउम है। यू आर कर्स्ड, कंडेम्ड।
क्यों तूने ऐसा किया। अब शैतान के लिए लिखा है, सॉरी शाम के लिए लिखा है कि वो सब जानवरों में बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था। उसकी चतुराई जो है, उसकी जो होशियारी है, उसके लिए आजमाइश का सबब बन गई और सजा का सबब बन गई। खुदा ने कहा कि चूंकि तूने ऐसा किया, तू अब पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। खाक चाटने का मतलब हरगिज ये नहीं कि सारी सांप की नस्लें जो हैं वो खाक चाटती हैं। जब छोटे होते हैं तो हो सकता है खाक ही चाटते हों, जब बड़े होते हैं तो फिर एनाकोंडास बन जाते हैं, पाइथन्स बन जाते हैं, जानवर खाना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े जो है वो समूची चीजें निकलते हैं, गोश्तखोर हो जाते हैं। यानी तेरा मुंह जो है वो खाक के साथ लगा रहेगा, हर लम्हे तेरा मुंह जो है वो खाक के साथ टकराता रहेगा। और इसको किसी खादम ने यूं भी इसको इंटरप्रेट किया कि आदम चूंकि खाक है, इसकी मज़ामत आदम से, मट्टी से हमेशा रहेगी जब तक वो कब्र में ना चला जाए। इससे दुखों से, बीमारियों से, तकलीफों से हमेशा चाटता रहेगा, तो उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरी और औरत के दरमियान, और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। मैं इसकी वजाहत में नहीं जाना चाहता हूं। फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। गौर से देखिए, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ा दूंगा। ऐसा लगता है वो पहले भी जन्म दे रही है, उसने पहले भी बच्चों को जन्म दिया है, पर उसने उस दर्द को कभी नहीं सहा जो उसने गुनाह के आने के बाद उसको सहा है। तू दर्द के साथ जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। पहले वो तुझे अपना मददगार समझता था, पहले वो तुझे अपने गोश्त में से गोश्त और हड्डी में से हड्डी, और फिर ये भी कि वो रेडी था अपने बाप बाप को तेरे लिए छोड़ने के लिए, लेकिन अब वो तुझ पर हुकूमत करेगा। अब हो सकता है तुझे तानों का सामना भी करना पड़े। वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से ये कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी है और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था। पहले दोनों को हुक्म की बात कोई नहीं की गई। हुक्म जो है वो आदम को दिया गया था, क्योंकि कलाम में लिखा है पहले बाब की 17th वर्स में, बल्कि 16th में, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया। अब ये सेकंड टाइम खुदावन ने कोट किया है कि आदम, चूंकि मैंने तुझे इसका हुक्म दिया था, तूने उसकी बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मुशक्कत के साथ तो अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। पहले मुशक्कत नहीं करता था, पहले कहता था, चीजें हो जाती थी, जिसका जो नाम रखता था वो हो जाता था। पहले उसको मुशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, पहले उसका पसीना नहीं बहता था। अब और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा और अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन जिसमें से तू लिया गया है लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। ये सारी बातें जब हो चुकी, ये सब कुछ जब हो चुका, तो अब इससे पहले के आदम और हवा जो है वो अदन से बाहर निकले, माफ कीजिएगा थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, इससे पहले कि वो बाहर निकाले जाएं, आदम ने हवा को नाम दिया। आदम ने हवा को उस रोज नाम नहीं दिया गया जिस रोज उसने उसे कहा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है। उसने आज नाम दिया है जब वो वहां से निकलने वाले हैं। और उसने क्या नाम दिया है? और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा। रीजन आगे लिखा है, इसलिए। अंग्रेजी में कहते हैं बिकॉज। दिस इज व्हाट इज द रीजन ही गेव हर नेम एंड ईव रीजन। रीजन ये है क्योंकि आदम को पता था कि मैं मट्टी से जन्म लिया मैंने,
पर जो इसमें से जन्म लेते हैं वो सब जिंदा हैं। इसके बतन से, इसके जिस्म से निकलने वाला हर शख्स जिंदा है, इसलिए कि वो सब जिंदों की मां है। शी इज ऑलरेडी अ मदर। अगर लिखा होता कि वो सब जिंदों की मां कहलवाएगी तो इसका मतलब है इट्स कमिंग इन फ्यूचर। और अंग्रेजी के जितने भी आप तर्जमे पढ़ेंगे वहां पर लिखा है बिकॉज शी वॉज मदर ऑफ ऑल लिविंग सोल्स। यहां तक ये बात जो है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि गुनाह से पहले भी उनकी औलाद ने जन्म लिया था, और आदम से निकलने से पहले उसको एक नाम दिया कि शी वॉज मदर ऑफ ऑल द लिविंग्स। उसके बाद अगली जो बातें हैं वहां पर लिखा, खुदा ने कहा देखो इंसान नेको बद में हम में से एक की मानंद हो गया। ये रेफरेंस मैं आज करना चाहता था, किसी रीजन आज टाइम नहीं कर सके, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। शोलाजन तलवार पर भी हम देखेंगे और घूमने वाले और क्रूबियों पर भी हम देखेंगे, क्योंकि इमीडिएटली जब इंसान को सजा मिली, उसको बैनिश कर दिया गया, तो खुदा ने कहा जिंदगी के दरख्त की तरफ जाने वाली राह की हिफाजत करो। खुदा ने यह नहीं कहा कि जिंदगी के दरख्त की हिफाजत करो, उसने कहा द वे गोज टू द ट्री ऑफ लाइफ, वो राह जो जिंदगी के हयात के दरख्त को जाती है, उस पर उसने क्रोबियों को मुकर्रर कर दिया और बाग के चौगिर्द उसने शोलाजन तलवार को लगा दिया कि फिर कभी इंसान उस जिंदगी के दरख्त की राह पर चलकर उसका फल ना खा सके। यहां पर आज हम खत्म करते हैं। अगले हफ्ते खुदा ने चाहा तो यहां से फिर आगे चलेंगे, फिर उस हयात के दरख्त की बाबत और फिर नए अहदनामे से इसका क्या ताल्लुक बनता है, हम उसको सीखेंगे। अब तक इतना ही कि हमने सीखा कि आदम और हवा की मौजूदगी जलाली बदन लाफानी, पर उनकी चॉइस जो है वो इमोर्टल इनोसेंस के साथ ना हो सकी, बल्कि नॉलेज विद डेथ हुई और इसके साथ मौत एक्टिवेट हुई। और ये वो दुश्मन है जो खुदा और इंसान दोनों ने मिलकर पैदा किया है। ये खुद ही खुदा जो है इसको फना करेगा। जब जब इंसान गुनाह करेगा ये मौत उसे आ लेगी, उसके लिए खौफ का सबब ठहरी रहेगी, क्योंकि इसे जो है वो एक्टिवेट करवाने वाला और इसको जो है वो लाने वाला, इसको वजूद देने वाला इंसान खुद भी है। दिस इज अ पार्ट